بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ زندگی کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ زندگی وہ خالی کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش لکھی ہے اور اس کے آخری صفحے پر موت لکھی ہے. درمیان کے صفحے زندگانی کے خالی ہیں. چاہے تو زندگی کے ان صفحات کو اعمال صالحہ سے مزین کر دے، چاہے تو ان زندگی کے خالی صفحات کو اعمال بد سے سیاہ اور کالا اور بدبودار کر دے. لیکن فرمایا یہ خیال رہے کہ کل جب یہ کتاب اللہ کی عدالت میں کھلے تو تجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. شرمندگی کب ہوگی؟ کہ جب یہ کتاب سینے کو چاک کر کے پشت کے پیچھے سے سختی کے ساتھ دی جائے گی تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس، خسران، نقصان. اور خوشحالی کب ہوگی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. کہ کتاب سیدھے ہاتھ میں کل قیامت کے دن دی جائے. فرمایا جس کو کتاب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب انتہائی آسانی کے ساتھ ہوگا. وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ، اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف فرمایا دوڑ لگائے گا اور کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، اے میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے سنگیوں، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، ہا اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا کی زندگی میں یہ یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے میں نے اس حساب اور اس ملاقات کے لیے تیاری کی. آج اللہ نے وہ کتاب مجھے سیدھے ہاتھ میں دے دی. ہا اقرؤ کتابیہ، یہ عربی میں خوشی کا ایک لفظ ہوگا جس سے وہ چیخ کر اظہار کرے گا لو میری کتاب کو پڑھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کی کتاب اس کو اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ پکارے گا کہ ہلاکت ہے، جہنم کی آگ ہے. اور یہ وہ کون تھا جسے ملاقات کا، اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں تھا، جو دنیا کے حساب کتاب میں لگا تھا کہ 1 کے 10 کیسے بنانے ہیں، 10 پر 20 کیسے ملنے ہیں. دنیا کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا.
जायज़ नाजायज़ की परवाह नहीं करता था, बल्कि वो ये समझता था कि यही जिंदगानी है और यही मेरी यहाँ जो करूँ शैतानी है, इसके बाद मौत कोई नहीं है। इसलिए कोई मरता भी था तो उसे कोई परवाह नहीं होती थी, उसे इतनी भी तौफीक नहीं मिलती कि वो 2 लब भर कर उस मैयत की कब्र पे डाले। वो वहाँ पर भी अपनी दुनिया की फ़ानी जिंदगानी की वाहियात और खिराफात और लग़वियात के अंदर अपनी ज़बान को कब्रिस्तान में भी तरोताज़ा रखता था। आज ये हलाकत को पुकारेगा, आज इसको कुछ नहीं मिलेगा, और साथ साथ वो ये कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के फलाने को मैंने अपना दोस्त न बनाया होता, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा कि वो आमाले बद करता था। मैंने दुनिया के आर्जी नफ़े और फ़ायदे के लिए उससे दोस्ती लगाई, लेकिन उस दोस्त ने खुद भी वो अल्लाह का नाफरमान था, खुद भी वो अल्लाह के साथ अदालत में खड़े होने से, हिसाब किताब से उसको कोई परवाह और सरोकार नहीं थी। मुझे भी इस मोड़ पे ला खड़ा कर दिया कि आज मैं उस दोस्त की दोस्ती की वजह से आज मैं इस जहन्नुम के गड़े तक पहुंच गया। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, आए काश के फलाने को दोस्त न बनाया होता। और कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होंगे जिन्होंने अल्लाह वालों को दोस्त बनाया, जिन्होंने कुरान से दोस्ती लगाई, जिन्होंने अल्लाह के फरमान से दोस्ती लगाई, जिन्होंने नबी के तरीक़ों से दोस्ती लगाई। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सारे दोस्त इसके पास कब्र में नूरानी शक्ल में आएंगे और इसके दिल को बहलाएंगे, और कुरान आकर कहेगा, मैं वो कुरान था जिसको तू पढ़ा करता था, जिसकी तिलावत किया करता था, आज तेरे अजीज़ों ने मनो मट्टी के नीचे तुझे डालकर सुपुर्द खाक कर दिया और अंधेरे के अंदर तुझे छोड़ दिया। मैं कुरान तेरा साथी हूँ, नमाज एक नूरानी शक्ल में आएगी, मैं तेरा साथी हूँ, रोज़ा एक नूरानी शक्ल में आएगा, मैं तेरा साथी हूँ, अल्लाह से मांगना नूरानी शक्ल में आएगा, मैं तेरा साथी हूँ। और ये कहेगा मरने वाला, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे, जैसे भाइयों ने छोड़ा, बेटों ने छोड़ा, अजीज़ों ने छोड़ा, फला ने छोड़ा, मनो मट्टी के नीचे मुझे दफन कर दिया, कहीं तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो कहेंगे, ना ना, तूने दुनिया के अंदर फानी जिंदगानी में उस रब्बुल आलमीन को, उसकी रज़ा को अपने सामने रखकर आमाले सालिहा किए, उसके अहकाम नबी के तरीके पे पूरा किए। हम तेरे साथी और साजी हैं क़यामत तक, जब तक तू कब्र से दोबारा उठाया नहीं जाएगा, हम कब्र में तेरे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये फानी जिंदगानी आज हर एक की किताब उसके सामने है, पैदाइश से लेकर 55 तक, 25 तक, 30 तक, जवानी तक, लड़कपन तक, बुढ़ापे तक, ये हर एक की किताब है। इससे गाफिल मत होना कि पैदाइश पहले सफ़े पर लिखी है, लेकिन आखिरी सफ़े पर मौत है, उसके बाद कोई नहीं, इस मौत के पास जाना है। इसलिए ये सफ़े ज़िंदगी के उलट रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, और आखिरकार आखिरी सफ़े पर जब मौत आएगी तो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए बुज़ुर्ग वारम सुबह फजर की नमाज पढ़ के रोज़े की हालत में वो नमाज फजर जमात के साथ अदा करके सफ़े अव्वल में जब गए थे कि घर वालों से मुलाकात करनी है, लेकिन इन्होंने आज अल्लाह से मुलाकात करनी थी। और खुशकिस्मत है कि माह रमज़ान में अल्लाह ने अपने पास बुलाया, जुमेरात का दिन भी मुबारक है, इस दिन बुलाया, और आज 23वीं शब है। आज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से उम्मीद है इस रमज़ान की बरकत से और इनकी दीन से, उलमा की बरकत से, कुरान की मोहब्बत की बरकत से, मैं इसकी गवाही देता हूँ इस बूढ़े आदमी के लिए, इस बुजुर्ग के लिए, कि ये बूढ़ा आदमी अपने जेब में कायदा रख के आया करता था और मुझसे अलिफ बा ता सा पढ़ के जाया करता था। मुझे आकर आयतुल कुर्सी भी सुनाता था, मुझे दुआए कुनूत भी सुनाता था, मुझसे नमाज का सबक भी सुनाता था। और आप और ये बैठने वालों को वो सूरतें बड़ी बड़ी याद नहीं होगी जो इस बुजुर्ग को याद थी। इसकी दीन से मोहब्बत थी। ये लोगों की कड़वी के सीरी सुनता भी था, वरगलाते भी थे, लेकिन ये मस्जिद को, अल्लाह के दरबार को नहीं छोड़ता था। अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक था और ये कायदा लेकर आता था और मुझसे कहता था कि मेरा कायदा ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा, कायदा ख़त्म हो या ना हो, जिंदगी ख़त्म हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हशर हाफिज़ों के साथ करेंगे, अल्लाह आपका हशर सिद्दीकीन के साथ करेंगे, क्योंकि आपकी कुरान के साथ मोहब्बत है। जिसकी अलिफ से मोहब्बत है उसकी अल्लाह से मोहब्बत है, जिसकी अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शी ज़रूर फरमाएंगे। यही उस कुरान की मोहब्बत की, उस कायदे, नूरानी कायदे की मोहब्बत का समर मैं समझता हूँ अल्लाह ने इस बुजुर्ग को दिया कि मैं और आप मांगते हैं कि रमज़ान में
मौत मिले। हमें और आप मांगते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात कब्र में हो, लेकिन मांगते हुए नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इस बुजुर्ग को नसीब की। यकीनन अल्लाह के यहाँ कोई नेकी इनकी मकबूल थी कि अल्लाह ने इनको इस बाबरकत महीने में और इस शब कदर की मुबारक रात आज इनकी 23वीं की शब कब्र में हो। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस कब्रिस्तान में जितने भी हमारे अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार तकरीबन इसमें दफन है, क्योंकि यहाँ दूसरा तो कोई आता नहीं है, तो इसके अंदर हज़ारे वालों का कब्रिस्तान है, ये पठानों का कब्रिस्तान है, वो सराइकियों का कब्रिस्तान है। तो सुनो हज़ारे वालों, तुम्हारी असल बिल्डिंग यही है। सुनो हज़ारे वालों, इस कब्रिस्तान में कोई और नहीं आ सकता, लेकिन याद रखना कि इस कब्रिस्तान में तुम्हारे आमाल आएंगे। अगर अच्छे आमाल किए तो नूरानी शक्ल में आएंगे, अगर बुरे आमाल किए तो फिर बुरे बुरे शक्ल में आएंगे। और आखिरी एक वसीयत नसीहत और एक शरई मसला बताता हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों। हर आदमी अपने अजीज़ की कब्र पक्की न किया करे। खुदा रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया था कब्रिस्तान में, ए अली कब्रिस्तान जाओ, जो कब्र एक बालिश से ऊंची नज़र आए उसको बराबर कर दो। अल्लाह आपको और मुझे नसीब फरमाए जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला, ये वो कब्रिस्तान है जिनमें हज़ारों सहाबा मदफून हैं। अल्लाह हम सबको जाना नसीब फरमाए। आप जाएंगे जन्नतुल बकी और मुअल्ला में, बताओ सहाबा किराम से सहाबियात से दुनिया में कोई अल्लाह का बड़ा वली है? जवाब दो। आप जाओगे तो आपको वहाँ मकामी बताएगा कि ये बीवी फातिमा की कब्र मुबारक है, ये फला सहाबिया की कब्र मुबारक है, ये फला सहाबी की कब्र मुबारक है, ये फला वली की कब्र मुबारक है। बिल्कुल वहाँ पर कब्रिस्तान में बिल्कुल कब्र छोटी, ज़मीन के साथ बराबर। हमें क्या हुआ? अगर हमारी मोहब्बत है तो ये जो आप मार्बल लगाते हैं कब्रें ऊंची करने के लिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसका कोई अजर नहीं, बल्कि हदीस में साबित है कि इससे बसा औकात मैयत को तकलीफ होती है। ये तो आप अपने अजीज़ के साथ, अपने वालिद के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बेटी के साथ, उसके साथ आपकी मोहब्बत नहीं, ये नफ़रत है। इसलिए अगर पक्की की है तो शरन ये भी हुक्म है उसका बराबर कर दो, ये मोहब्बत है उनसे। ये जो आपने मार्बल हम और आप लगाते हैं, हज़ारों रुपए लगाते हैं इस पर, मैं आपसे एक मशवरा देता हूँ, आपसे सवाल करूँगा, शायद आप तायीद करें। ये मार्बल आप किसी मस्जिद के मुसल्ले पर, एक मुसल्ले पे लगा दें, क़यामत तक मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी? वहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? लगाने वाला पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो रहेगी। उस पर आपने नमाज पढ़ने वाला पढ़े, तिलावत करने वाला तिलावत करे, आपने सदके जारिये के लिए कि आपकी वालिद है, वालदा है, भाई है, दोस्त है, संगी है, यार इसके लिए मैं इसाले सवाब करूँ, ये सदके जारिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के मरने के बाद अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर मस्जिद बनाई, अब मस्जिद बनाने से मुराद आपने फरमाया जिसने चिड़िया की घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। आप एक मुसल्ला मस्जिद में लगा दें, आप वज़ू खाना बना दें, आप मस्जिद का मीनार लगा दें जिसमें अजान हो, आप मिंबर बना दें मस्जिद की सीढ़ियों का। हम यहाँ कब्रों की सीढ़ियाँ बनाते हैं, अल्लाह के वली ये मस्जिद की सीढ़ियाँ बना दो मस्जिद में, जिसमें लोग नमाज के लिए जाते हैं, तो मस्जिद की सीढ़ियों से नमाजी जाएंगे आएंगे, रोज़ाना हज़ारों कदम उठाएंगे, आपके अजीज़ को अजर मिलेगा। तो ये हम जो काम करने का है जिससे कोई फ़ायदा हो तो वो करें। तो इसलिए मेरी तमाम साथियों से दर्द दिल से दरख्वास्त है कि जिन जिन अजीज़ों की कब्रें आपने ऊंची की हैं उसका मार्बल आराम से निकालें और किसी मस्जिद में दे दें और उसकी कब्र को बराबर करें। अब यहाँ सवाल होता है कि कब्रिस्तान में बारिश होती है, पीछे से पानी आता है, हमारी कमेटी वाले काम नहीं करते, फला। तो भाई उसके लिए तरीका ये है कि शरीयत ने इतनी इजाज़त दी है, एक बलाक आप जो है यूँ लेटा हुआ लगाए, चारों तरफ से एक लेटा हुआ बलाक घुमा ले, उसका ये होगा कि कब्र की मिट्टी भी नहीं फैलेगी और दरमियान से कब्र कच्ची रहेगी। तो इसका एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, इस पर भाई अमल करें ताकि ये दीगर देखें। हमें देखी दिखाई में बहुत सारे साथी वो काम कर लेते हैं, फलाने के अब्बे की ऐसी है, मैं भी ऐसी बनाऊँगा। मैं एक कब्रिस्तान में गया, उधर साथियों ने बताया ये 1.5 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 3 लाख की है। ये क्या करते हैं? इसको शोबदाबाजी कहते हैं, इसको ज़िदबाजी कहते हैं, इसको रियाकारी कहते हैं। रियाकारी के सींग थोड़ी होते हैं। तो इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने अजीज़ों को तकलीफ़ न पहुँचाएं। मुझे याद है मैंने अपने वालिद गिरामी से फरमाया था
हमारी दादी जान की कब्र गांव में पक्की थी, तो मैंने वालिद साहब से कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे, एतिकाफ में बैठे, अल्लाह उनका एतिकाफ भी कबूल फरमाए। मेरे वालिद साहब इस अज़म से गाँव गए, अब मेरे जो अजीज़ हैं आप जाकर देखें मेरी दादी की कब्र वालिद से ऊपर से बराबर कर दी, वो एक ही छोड़ दिए। कोई बात नहीं, अब हमारे जहन में शैतान ये डालेगा कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो हमारे लोग बातें करेंगे। तो हाँ, अगर आपने लोगों के लिए किया है तो फिर आप छोड़ दें। अगर आपको आखिरत में और अपने अजीज़ की राहत चाहिए, उसके साथ आपको मोहब्बत है कि उसको अजाब ना हो इसकी वजह से, तो आप उसको ज़रूर बराबर करें। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने खुद मुकर्रर फरमाया था कि अली जाओ और जो कब्र ऊंची नज़र आए बराबर कर दो। हज़रत अली ये काम था, वो बराबर करते थे। और इसके नुकसानात भी हम और आप देखते हैं, बारिशें होती है, कितनी हमारे अजीज़ों की कब्रें हैं नीचे गिर जाती हैं, फिर एक दूसरे को फ़ोन करते हैं भाई फलाने की कब्र है, फिर अगर वो ना आए तो उसकी मुझे बातें भी करते हैं। ऐसे ही होता है ना, बोले इसको तो अपने अजीज़ का पता ही नहीं है, उसकी कब्र बैठ गई है, इनको फिक्र ही नहीं है। अल्लाह के वली बैठी क्यों है? आप शेरशाह में जाओ, कब्रें क्यों दस्ती है, इतने बड़े बड़े उस पर कुप्पे बना लेते हैं, फिर वो बारिश होती है तो ज़मीन मट्टी है, ऊपर आपने उस पर वज़न डाला है, वो बेड सिल टूट जाते हैं, नीचे मैयत की तौहीन होती है। फिर आखिर में उलमा क्या बताते हैं कि अगर कब्र में मैयत जो है वक्त गुजर गया तो मट्टी से उसको क्या करते हैं, सुबत बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे ज़बान, उसको बिल्कुल भर दो। तो ये नौबत ही ना आएगी। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और दीन की कदर नसीब फरमाए, हमारे इस अजीज़ की बख्शिश फरमाए। जितने मेरे नौजवान दोस्तों ने, भाइयों ने इस कब्र की खिदमत में हिस्सा लिया और इसमें मेहनत की, अपना पसीना बहाया, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। मेरे जवानों, जिस बुज़ुर्ग के लिए आपने कब्र खोदी, मेरे बहुत से ऐसे जवान हैं यहाँ, हमारे भाई आसिफ है, हमारे चाचा हुआ करते थे, उमर खिताब चाचा, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। वो उन्होंने अपने बहुत से शागिर्द तैयार करके दुनिया से गए। भाई आसिफ है, दीगर लड़के हैं माशाल्लाह, ये आते हैं बिला रंग व नस्ल के, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। ये नहीं कहते ये हज़ारे वालों का कब्रिस्तान है, ये हज़ारे वाल हैं तो हम इनकी कब्र नहीं खोदेंगे। ये माशाल्लाह बिला रंग व नस्ल तफरीक के हमारे अपने लोगों से ज़्यादा ये लोग आकर हमारी कब्रें खोदते हैं। ये मैं इस पर खुद गवाही देता हूँ। मैं उनसे गिला भी करता हूँ कि हम और आप तो इधर उधर दरख्तों के नीचे बैठे होते हैं, ये कब्र खोद रहे होते हैं। ये आखिर तक मैं इनको देख रहा होता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर ये भी हमारे लम्हा फिक्रिया है, इसकी तरफ भी हम तवज्जो दें कि हम जो है अपने अजीज़ों के साथ जो वफा करें और उसके साथ साथ जो है इन नौजवानों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं तो आपके लिए दुआ कर सकता हूँ और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं आगे इंशाअल्लाह ताला अपने बड़ों से बात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैं जो हो सकेगा सहूलियात इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। दिली दुआएं निकलती हैं। ये जवान सुबह नींद मीठी से उठे, जैसे ही पता लगा तो सब आंखें मसलते हुए उठे और ना नहीं की बल्कि गाड़ी में बैठकर यहाँ आए, वक़्त पर कब्र तैयार की। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इस मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह हम गुनाहगार सियाकार हैं, तेरे बंदे हैं। इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, आखिरी अशरे में, ए अल्लाह तेरा मेहमान हमसे गुज़रा और हमारा एक अजीज़ भी हमसे, ए अल्लाह तूने लिया, तेरी तकदीर पर हम राज़ी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरी तरफ ही हमने लौट कर आना है। ए अल्लाह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद किए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सहरी और इफ्तारी में तू गुनाहगारों की बेतहाशा मग़फ़िरत का ऐलान करता है। ए करीम अल्लाह, इस हमारे अजीज़ को जो मुक़द्दस महीने में अपने पास बुलाया, ए अल्लाह इनकी कब्र को जवार रहमत बना दे। ए अल्लाह इनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमारे जितने अजीज़, मेरे अजीज़ बुज़ुर्ग दोस्त, मेरे जितने भी रिश्तेदार, या अल्लाह मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ए अल्लाह बेटियां हैं जो इस कब्रिस्तान में मेरे अजीज़ दफन है, ए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह सब की कब्रों पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस रमज़ान मुबारक की बरकत से सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह सब की आने वाली मंजिलें आसान फरमा। ए अल्लाह हमें भी आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमा। ए अल्लाह गिरद नवाह में जितने भी मुसलमान मदफून हैं सब की बख्शिश फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह ये सारे नौजवान मुसलमान बुजुर्ग भाई दोस्त रोज़े की हालत में तेरे सामने अपने असली मकान और कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जो हमारा असल मतमा, हमारा असल जगह है, या अल्लाह हमारा असल ठिकाना है। ए अल्लाह इस
اس مٹی میں داخل ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے، اپنے پاس بلانے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما کہ ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو ہم بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دکھاتے پڑیں، یا ہماری کتاب پڑھ لو، اے اللہ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں نہ دینا، ہمیں ہلاکت سے دوچار نہ فرما، اے اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ سب کی جتنے یہاں بزرگ موجود ہیں سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جتنے جوان ہیں سب کی جوانیوں میں برکت نصیب فرما، جتنے جوانوں نے، ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے یا اللہ یہاں قبر کشائی میں یا اللہ حصہ لیا، محنت کی، ہمارے چاچا جان او یا اللہ بزرگوارم، ہمارے عبدالرزاق چچا، ان کے ساتھ آصف بھائی اور دیگر جتنے ساتھی ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، سب نے جو محنت کی قبر کشائی میں ہمیشہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کی اس محنت کو، خدمت کو قبول فرما، اے اللہ انہیں ہمت استقامت نصیب فرما، ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت اے اللہ کلمہ نصیب فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔